this is for my congregation which I spoke now, ये जो बातें थी वो मेरे कलीसिया के लिए, so that you have a hunger for the things of God. जिससे कि आप परमेश्वर की चीजों के प्रति अपने अंदर भूख लेके आ सकें। This season has two celebrations together. और इन दिनों में दो जो उत्सव है मनाना, Yes, two celebrations has come together. और दो जो उत्सव मनाने का कारण है वो आए। One celebration is the resurrection of the Lord Jesus Christ, और एक हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मनाए, and the second is the Passover celebration which every year the Israelites celebrate. और एक जो फसह का पर्व जो प्रतिवर्ष इस्राएली मनाया करते थे वो हमने मनाया। Why did they celebrate? As a memory, क्यों हमने उसमें स्मरण में उसको मनाए? because they were delivered from bondage. क्योंकि वो बंधन से, गुलामी से, दासता से वो आजाद हुए। Yes, before Jesus went to the cross, he celebrated Passover. यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले फसह को मनाया। So Jesus is our Passover lamb. इसीलिए यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। So we have the right to celebrate Passover in our life. इसीलिए हमारे पास भी वो अधिकार है फसह को मनाने का। Israelites celebrate Passover because they were delivered from physical bondage into freedom. और इस्राएलियों ने उस फसह को इसलिए मनाया ताकि वो शारीरिक रीति से उस गुलामी से आजादी में आ They सके। were slaves in Egypt and God delivered them from the slavery and brought them out of slavery into freedom. और वो मिस्र में गुलाम थे और गुलामी से वो जो है आजादी में, स्वतंत्रता में आ गए। So they celebrate Passover because of physical liberation. उन्होंने उस फसह को इसलिए मनाया कि वो शारीरिक स्थिति में आजादी को, स्वतंत्रता को प्राप्त करें। But we celebrate Passover because we are delivered from spiritual bondage. और हम इसलिए उस फसह को मनाएं कि आत्मिक रीति से, आत्मिक गुलामी से हम आजादी में आए। Yes, we have been delivered from the power of sin, the penalty of sin in our life, and because Jesus became the Passover lamb. क्योंकि यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना बना और हम इसलिए मनाएं कि हम पाप के बंधन से आजाद हो सकें और उन तमाम चीजों से आजाद हो सकें। Hallelujah. So that is why we celebrate. And another celebration we have is the day of resurrection, which we celebrated on Sunday. और रविवार को हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मनाया। Yes. So it so happens this year the Passover celebration and the resurrection celebration has come together. और इन दिनों में इस वर्ष में यही बात हुई कि फसह का पर्व और उसके बाद जो है जो पुनरुत्थान का दिवस हमने मनाया। Yes, these two have come together, so we celebrate. और ये दोनों एक साथ हुआ और इसको हमने मनाया। Because of this, there's a great blessing is going to come into the life of you people. और इन सब को मनाने के कारण एक बड़ी आशीष आप सब लोगों के जीवन में आने वाली है। This evening, I'm going to tell you, you can enjoy 7 blessings in your life this evening. और आज की शाम जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कि 7 प्रकार की आशीषें आपकी जिंदगी में आएंगी। Hallelujah. Hallelujah. How many of you want blessing in your life? कितने प्रकार की आशीष चाहते हैं? This evening, God is going to reveal 7 blessings because of the resurrection and of the Passover feast in our life. और आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन में 7 प्रकार के आशीषों को प्रकट करने जा रहा है क्योंकि फसह के पर्व को और उस पुनरुत्थान के पर्व को हमने मनाया। Let us turn to Exodus 23rd chapter. और निर्गमन के पुस्तक उसके 23 अध्याय को निकालें। How many of you are eager to know the blessing this evening? कितने लोग उन आशीषों को पाने के लिए उत्सुक हैं? Yes. So I am going to give you this blessing. You can go home and appropriate that blessing in your life. और इन आशीषों को मैं दे रहा हूँ, आप इसे घर जाएं और प्राप्त। Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes.
Nirgaman chapter 23. Yeah. Let us read verses 1. हाँ, पहले पहले पद को हम पढ़ेंगे। 23 अध्याय निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और पहले पद। झूठी बात न फैलाना। No, 20. 23, 20. 20 23, या 20. Verses 20. Yeah. सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। Yes. 20वीं आयत। Hallelujah. हालेलुया। God is going to give you supernatural promises to those who are faithful in observing Passover. Yes. और जो लोग उसके उस फसह को मनाने में विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर उनको अलौकिक बातों को देगा। Yes. Each of this blessing will revolutionize your life. और ये हर एक के ऊपर ये आशीष जो है एक क्रांतिवीरता को, एक आंदोलन को लेके आएगा। Hallelujah. Hallelujah. कितना लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि क्रांतिवीरता आपके अंदर आए? Yes, yes. All these 7 blessings are going to revolutionize your life. और ये सातों आशीषें आपके अंदर हलचल मचा देंगे, Yes. हलचल लेके आएगा। What is the first blessing? पहली आशीष क्या है? Verses 20. Behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared for you. और इस तरीके से यहाँ पे लिखता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। So the first blessing is God has assigned an angel in your life और पहली जो आशीष है कि परमेश्वर एक दूत को आपके आगे आगे नियुक्त करेगा to bring you to the place of promise. और उस प्रतिज्ञा के स्थान पर आपको लाने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. See, you and I are so privileged. और आप देखिए, आप और मैं कितने सौभाग्यशाली हैं। Yes, God has assigned an angel in our life to lead us to the place of blessing. और परमेश्वर आपके और मेरे लिए एक स्वर्गदूत को नियुक्त करता है आशीष के स्थान पर मार्गदर्शन करने के लिए, पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए। That is the first blessing. ये पहली आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want that blessing in your life? कितने लोग ये आशीष अपने जीवन में How चाहते many of you want the angels to guide you on in every area of your life? कितने लोग चाहते हैं आपके जिंदगी के हर एक लम्हों में, पहलू में स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करता रहे? What is the second blessing? और दूसरी आशीष क्या है? Let us go to verses 22. Yes. Chapter 23 verses 22. और उसकी 22वीं आयत पे आ जाते हैं। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I'll be an enemy to your enemy and an adversary to your adversary. और मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। See, your enemy cannot withstand you. और आपके सम्मुख आपके शत्रु खड़े नहीं हो सकते। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because if anybody makes you an enemy, they are making enemy of God. और कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी लेता, आपको अपना दुश्मन बनाता है, इसका मतलब वो परमेश्वर को दुश्मन बना रहा है। Hallelujah. You see, if somebody makes you an enemy, और कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता और दुश्मनी रखता है तो who is standing for you? आपके लिए कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? बोलिए, जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। बिल्कुल नहीं बोलते हैं ना? Who is standing for you? आपके लिए कौन खड़ा हो रहा है? Yes. So if your enemy is standing against you, यदि God says, I'll become their enemy. और परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तेरे दुश्मन तेरे लिए खड़े हैं तो मैं उनका दुश्मन बन जाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. See, no enemy in your life can stand against you. कोई भी आपका शत्रु या दुश्मन आपके खिलाफ में आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता। Hallelujah. See, हालेलुया। you are always in the place of victory. जो हर समय आप जय के स्थान पे होंगे। Satan might try to put some hurdles in your life. शैतान हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ चीजों को, रुकावटों को वहां पे खड़ा करके रख ला सकता है, But he'll become enemy of God. लेकिन वो परमेश्वर का दुश्मन बन जाए।
मलाकी में क्या बोला है परमेश्वर? मलाकी में क्या बोला I परमेश्वर? like the Hindi translation. या हिंदी ट्रांसलेशन के अनुवाद के हिसाब से, मैं शैतान को गुड़कूंगा। मैं शैतान को भुड़क दूंगा। वो उसका मतलब क्या है? भुड़कना मतलब मैं लोग तो हार्डली बोलना कि तुम यहाँ से जाओ, जैसे बोल सकते हैं, Hallelujah. या भाग जाओ, Hallelujah. लाइक दिस। Yes. या परमेश्वर बोला मैं गुड़कूंगा। हाँ, परमेश्वर उस I शैतान rebuke the enemy. उसको बिल्कुल डांट देगा, उसको डांटना भी बोल सकते हैं। Yes. उसको परमेश्वर शैतान को डांट देगा। So no enemy can stand against you because you are under the protection of God. आप परमेश्वर की सुरक्षा के दायरे में हैं, इसलिए कोई दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। Because that's what it says in Psalm 91:1. और इसीलिए भजन संहिता 91:1 में इस बात को कहता है। What does it say? क्या He कहता है? that dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया मतलब क्या है? छाया मतलब क्या है? ना? इसके एक छाया मतलब समझ रहे हैं? हाँ? हाँ, Shadow. शैडो, छाया। छाया मतलब हाँ? कुछ जगह का आपके सुरक्षा में रहे। आपकी सुरक्षा के हाँ, प्रोटेक्शन, some kind of protection. कुछ एक प्रकार का आपको सुरक्षा प्रदान होगी। Hallelujah. Hallelujah. Yes. You will have a protection. Your enemy cannot withstand you, cannot touch you because you are in the secret place. एक गुप्त स्थान में। और आप ऐसे छाये में रहेंगे, छाया मतलब ऐसे सुरक्षा के घेरे में रहेंगे कि आपका दुश्मन, आपका शत्रु आपको छू भी नहीं पाएगा। See, you and I are so privileged. तो देखिए यहाँ पर मैं कितने सौभाग्यशाली है। God only not only sends an angel, He says, "I'll be an enemy to your enemy." और परमेश्वर सिर्फ दूत को ही हमारे लिए भेज रहा है, इतना ही नहीं, बल्कि वो कह रहा है तेरे दुश्मन तेरे शत्रु मेरे शत्रु ठहरेंगे। That is the second blessing. ये दूसरी आशीष है हमारे लिए। What is the third blessing? और तीसरी आशीष क्या है? Verses 25. और उसके बाद हम देखेंगे 25वीं आयत को हम देखते हैं यहाँ पर। He says, "So you shall serve the Lord your God; He will bless your bread and your water." तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग ना, उसको ना मत। या He will, what does it say? He will bless your bread and your water. वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। Hallelujah. 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 समझ रहे? Oh, what does it mean? He will bless your bread and your water. वो कह रहा है इसका मतलब है तेरे अन्न जल को आशीष दूंगा का मतलब क्या है? आपका रसोई में कोई कम नहीं है। आपकी रसोई में किसी वस्तु भोजन वस्तु की घटी नहीं होगी। You will go to your kitchen. आप किचन में जाएंगे, दाल भरपूर है। दाल भरपूर रहेगा। Enough दाल. और पर्याप्त दाल There रहेगा will be enough oil. और पर्याप्त तेल रहेंगे There will be enough rice. और पर्याप्त चावल रहेगा There will be enough vegetables. और पर्याप्त सब्जियां भी रहेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Prosperity. समृद्धि। Yes. The third blessing in your life is prosperity. और तीसरी जो आशीष है आपकी जिंदगी के लिए वो है समृद्धि। No lack in your life. आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगा। Yes. That is prosperity. यही है समृद्धि। Yeah, you will not say, अरे दूध कम हो गया, चावल कम हो गया. No. Right from या day one. No. और उस दिन से जब April 1st से April 30th तक आपका रसोई में किसी चीज को और 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक आपके किचन में सब कुछ भरपूर होगा, किसी बात की घटी नहीं होगी। When will it happen? और कब होगा? When you serve the God. जब आप परमेश्वर की उपासना करेंगे। Serve the Lord your God. जब आप अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे, He'll bless your bread and your water. और वो तेरे अन्न जल में आशीष को देंगे। That is the third blessing. ये तीसरी आशीष है खुदा की ओर से। Are you enjoying today? क्या आप आनंद उठा रहे हैं कितना संदेश का? इस संदेश का मजा आ रहा है? यस Yes. Yeah. 3 blessings. 3 आशीषें मिल चुकी है आपको। Yes. What is the fourth blessing? और चौथी आशीष क्या है? Verses 25. आखिरी. और उसी आयत 25वीं आयत के आखिरी भाग को देखो। Take away sickness away from the midst of you. और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, supernatural protection in your life. आपके जीवन में अलौकिक सुरक्षा का घेरा होगा। कितना so many people come here said मैं डॉक्टर्स के लिए लाखों रुपए दिया
और कितने लोग यहाँ पर आके इस बात को जाहिर किए कि हमने डॉक्टर और यहाँ वहाँ कितने पैसे लगाए। Yes, they spend money to the magician, they spend money to the physician. और उन्होंने चिकित्सक के पास और झाड़ फूक वालों के पास कितने पैसे उन्होंने लगाए। When you are under the shadow of the Almighty, लेकिन जब आप सर्वशक्तिमान की छाया के तले होते हैं तब sickness will not be in your house. और बीमारियां आपके परिवार में जिंदगी में नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। That is the blessing in your life. यही आपके जीवन No में sickness, कोई बीमारी नहीं no होगी, sugar, no BP. कोई बीपी नहीं होगा, कोई शुगर नहीं होगा, Nothing will be in your life. कुछ भी। You will not spend your money on doctor. और डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास आपको अपने पैसे खर्च नहीं करने होंगे। No, I used to spend 10,000 every month for doctor. और हर एक महीना आप जो है 10,000 रुपए डॉक्टर के पास लगाया करते थे। अभी hardly 1,000 or 500. अब जो 1,500 के अंदर वो सिमट के आ गया। Hallelujah. हालेलुया। Yes, God will take away sickness from your life. तो जीवन से परमेश्वर रोगों को दूर कर देंगे। कितना लोग, how many people come here, मेरे को कैंसर है, मेरे को ये this है, and I have that, I have kidney problem, I have cancer problem, I have heart problem. How many people who come here? और कितने लोग यहाँ पर आए और वो किडनी समस्या, हार्ट की समस्या, कैंसर और तमाम बीमारियों को उन्होंने जिक्र किया है। Because they are not under the shadow, they are not serving God. That is why there is sickness in their life and in their family. वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया के तले नहीं है, वो उसकी उपासना नहीं करते, इसलिए वो रोग और बीमारियां उनकी जिंदगी में बनी हुई है। When you come and enjoy this blessing in your life, और जब आप आते हैं और इन आशीषों का जब आनंद उठाते हैं, yes, God will assign an angel. God will assign परमेश्वर an आपके लिए angel. सरदूतों को नियुक्त करेगा आगे जाने के लिए। God will become enemy to your enemy. आपके दुश्मन के लिए परमेश्वर दुश्मन बन जाएंगे Your bread and your water will be blessed. और आपके अन्न जल पर आशीष मिलेगी There will be no sickness in your life. और उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई रोग नहीं होगा। What you have to do? You have to appropriate this blessing into और your क्या life. करना है, इन आशीषों को दावा करके ले लेना है आपको। Yes, that. And what is the next blessing? और अगली आशीष क्या देखते हैं? Verses 26 पढ़िए। और उसके बाद 26वीं आयत पर हम जाते हैं। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। क्या? कोई बांझ नहीं होगी। यस, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इस कलीसिया में I want nobody should be barren in this church. और इस कलीसिया में कोई भी बांझ नहीं होना है। Because the first blessing God gave is be fruitful, increase, multiply and have dominion over. और पहली आशीष जो परमेश्वर ने दी कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और सब कुछ को अपने नियंत्रण, अपने वश में कर लो, प्रभुता करो। Did I say that there won't be miscarriage? Did I say barren नहीं है? You won't be barren? क्या मैंने कहा कि तुम बांझ रहो या तुम्हारे गर्भ गिर जाए? कौन बोला है? कौन बोला है? जोर से बोलिए, कौन बोला है? परमेश्वर। अरे ये कब तो बोलते? कौन बोला है? Yes, he said there won't be barren, there won't be miscarriage, and not only that, I will fulfill the number of your days. और न तो कोई गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी और मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। पूरी करूंगा, आयु को पूरी करूंगा। पूरे उम्र को मैं There won't be sudden death in this place. और अचानक मृत्यु नहीं होगी। See, that is why I don't believe in going to funeral. और इसीलिए मैं जो Because I don't want this church to have often funeral in this church. इस कलीसिया में क्या फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, हाँ अंतिम संस्कार हमारा चर्च में आने के लिए मैं नहीं चाहते। अंतिम संस्कार वाली बात घटना घटे ये मैं नहीं चाहता हूं। मेरे नहीं घटना, नहीं घटना, it should not happen. हाँ ये नहीं होना चाहिए। When should you die? कब आपको मरना है? When you are very old. जब बहुत उम्र दराज हो जाए। God should बुढ़ापा, एक पूर्ण बुढ़ापे पे, दीर्घायु, in your strength, आप अपने सामर्थ शक्ति में
God should take you. वो अपने सामर्थ के अंत में वो परमेश्वर आपको You उठा should say, I'm fulfilling the number of my days. और आप कह सके मैंने अपने आयु को पूरा किया है। है ना? Great men of God. परमेश्वर के महान दास Yes. When they are working, और जब वो कार्य कर when रहे they थे, are preaching, जब वो प्रचार कर रहे थे, when they are eating, जब वो एक फल खा रहे थे, God took them up. और परमेश्वर ने उनको उठा लिया। यही मैं चाहता हूँ. I also want to be like that. मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो। I don't want to die in sickness और बीमारी में मर जाऊं ऐसा नहीं चाहता। as I'm standing here. जब इसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ I want to go. Hallelujah! 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 How I want to go! ऐसे मैं जाना चाहता When हूँ। I'm preaching the word of जब God. मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा हूँ, Full of strength. और उस तमाम सामर्थ्य में Full of energy. पूरे ताकत और शक्ति से भरा हुआ मैं जाना चाहता हूँ। That is God's purpose. ये परमेश्वर का उद्देश्य है। That is the promise of ये God. प्रतिज्ञा परमेश्वर की। Unfortunately, Christians do not know this truth and they are suffering with sickness. और दुर्भाग्य से मसीही लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए तमाम रोगों से ग्रसित जिंदगी को जीते हैं। Because they are not obedient to the word. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं है। When you are obedient to the word, जब आप वचन के प्रति आज्ञाकारी होंगे 24 hours 7. और सातों दिन 24 घंटे When you are in the presence of जब God, आप प्रभु की उपस्थिति में होंगे, there won't be any sudden sickness in your life. आपके जीवन में कोई भी अचानक वाला रोग भी नहीं आएगा। अचानक वाला चीज नहीं रहेगा. अचानक वाला चीज नहीं घटेगा। Hallelujah. How many of you want to enjoy such blessing in your इस life? तरह की आशीष को कितने लोग अपने जीवन में आनंद उठाना चाहते Yes. हैं, लाभ उठाना चाहते Yes, this evening, let us appropriate this blessing. हैं। आइए इसकी शाम इस आशीष को हम ग्रहण करें। And what is the next blessing? और अगली आशीष क्या है? Verses 30. 30वीं आयत। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं इन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। क्या बोला? फिर से पढ़िए. जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं इन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। So what is the next blessing? तो अगली आशीष क्या है? God will give you supernatural increase in your life. परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक उन्नति को देगा। Until you are increased and you inherit the land. और जब तक तू बढ़ न जाए और फूल फल कर बढ़ न जाए और देश को अपने अधिकार में न कर। Hallelujah. हालेलुया। हमारा देश क्या है? हमारा देश क्या है? What is our country? हमारा देश क्या है? Land of milk and honey. और दूध और मधु की धारा बहने वाला देश। Hallelujah. हालेलुया। That is the life of a Christian. ये है मसीह जीवन का जीवन। Yes, your life there should be increase in your life. और आपका जीवन जो है उन्नति करने वाला, बढ़ने वाला जीवन है। Hallelujah. Hallelujah. What does it say? Leviticus निकालिए. Leviticus 26 chapter. Leviticus 28 chapter. लेवे उसका 26 chapter. 26 अध्याय। लेवे उसका 26 अध्याय And verses 10. और उसकी 10वीं आयत। This is the kind of increase I am talking about. और इस तरह की बढ़ोतरी को मैं बढ़ने वाली चीज को बता रहा हूँ। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे हालेलुया। और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। Hallelujah. You see, you shall eat the old harvest and clear out the old because of the new. और तुम पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को खाओगे। That is increase. ये है बढ़ना। Yes. पुराना चीज को आपके घर में पुराना चीज को खाएंगे, नया चीज को खा रखेंगे। Hallelujah. पुराने चीज को खाएंगे और नए को जमा करके रखते जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How many want such a blessing? इस तरह की आशीषें कितने लोग Eat चाहते the हैं? old things and store the new things. और पुरानों के खाएंगे और नया को जमा करेंगे। Yes. See, what a wonderful God we कितना serve. अद्भुत परमेश्वर जिसके So many blessings He has given. इतनी आशीषें उसने हमारे को दिया। He'll send an angel. He'll become your. He'll
be an enemy to your enemy. Yes, go ahead. और वो जो है आपके सामने अपने दूतों को भेजेगा और आपके लिए आपके शत्रु उसके शत्रु बन जाएंगे And he'll bless your bread and your water, your kitchen and everything will be और blessed. आपके अन्न जल किचन को भरपूर आशीष And करेगा there won't be sickness in your आपके life. जीवन में कोई बीमारियां नहीं होगी You'll always enjoy good health in your और life. अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे And your days will be numbered. You'll be living a long life. और आपकी आयु गिनी हुई एक दीर्घायु जीवन को आप जिएंगे Every day there will be increase in your life. और फिर प्रतिदिन आपके जीवन में उन्नति होगी There won't be shortage in your life. आपके जीवन में किसी तरह से घटी न होगी कोई चीज को कमी नहीं है. कोई चीज की कमी और घटी नहीं होगी No shortage of joy, no shortage of blessing, no shortage of increase in your life. और उन्नति और आनंद और किसी चीज की घटी नहीं होगी Hallelujah. That is what. And what is the next blessing? और अगली आशीष क्या है Verses 29 पढ़िए. और उसके बाद हम 29वीं आयत को देखेंगे 29वीं आयत मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनैले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे And what happened? I will not drive them out before you in 1 year, less the land. So this year is going to will be flooded with the blessing of God. और ये जो वर्ष होगा आपके लिए वो उमड़ते हुए आशीष का वर्ष होगा धीरे धीरे everything will happen. और धीरे धीरे सारी बातें आपकी जिंदगी में God will not give you immediately. और एकदम से सब कुछ को परमेश्वर नहीं देगा That is why he said every day with a new expectation, with a new expectation, with a new expectation. इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ हर दिन आप एक नई अपेक्षा नई उम्मीद के साथ Yes. When you get up, you'll say, Lord, today I am expecting something new in my life. तब आप कहना है कि परमेश्वर आज की सुबह आज का जो दिन है एक नई अपेक्षा के साथ करना Hallelujah. Hallelujah. Something new is happening. कुछ चीजें नई आपके बोलिए में मेरे जीवन में सब एक something new will happen. बोलिए और आप कहिए कि मेरे जीवन में कुछ नया होगा रोज प्रतिदिन yes every day हर एक दिन new things will happen. नई नई बातें आपके साथ Yes. In this year is a year of blessing. और ये जो वर्ष है आपके लिए आशीष का वर्ष ठहरेगा बोलिए ये साल बोलिए इस साल मेरे जीवन से उत्तम आशीष के साल है. इस उत्तम आशीष से मिलेगा Yes. Great blessing will come into your life. महान आशीष आपके लिए मिलेगा All these 7 blessings ये सातों आशीषें is for you. आपके लिए Raise up your hand. अपने हाथों को उठाएं Tell God, कहें प्रभु से Lord, I receive all the 7 blessings. ये सातों आशीष को प्रभु मैं आज स्वीकार करता हूँ ग्रहण करता हूँ That is why God has called you. इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है The God we worship is a God of purpose. हम परमेश्वर जिसकी आराधना स्तुति करते हैं वो उद्देश्य से परिपूर्ण परमेश्वर Today, how many of you are filled? और आप में से कितने लोग आज भर गए Hallelujah. हालेलुया Go, be filled in your life from this place. और जब आप जाएं इस आशीषों से परिपूर्ण होकर के जाएं Yes. He wants to fill you. और वो आपको भरना चाहता He है wants to bless you. वो आपको आशीष करना चाहता है Because He wants to see His children always being blessed. और क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को हर समय आशीष से भरे हुए देखना चाहता है Send an angel. वो आज स्वर्गदूतों You को आपके become लिए an भेजेगा enemy to your enemy. आपके दुश्मन शत्रुओं के लिए वो शत्रु बन जाएगा Your kitchen will be blessed. आपका किचन भरपूर आशीष से भरा रहेगा There won't be any sickness in your life. आपके जीवन में कोई बीमारियां नहीं होंगी Yes, and your number of your days will be fulfilled. आपको दीर्घायु जीवन देगा You will not die suddenly. आप अचानक से आपकी मृत्यु नहीं होगी There will be prosperity in your life. आपके जीवन में समृद्धि होगी पुराना चीज को खाएंगे, नया चीज को और नया चीज को जमा करेंगे पुराना चीज को खाएंगे
This year is going to be a supernatural blessing. और ये वर्ष इस साल आपके लिए अलौकिक आशीषों का साल होगा। Hallelujah. हालेलुया। Let us get up. आइए अपने स्थान में खड़े हो। Let us get up. आइए स्थान में खड़े हो। Tell God, कहे प्रभु से, God, I want the 7 blessing. पिता परमेश्वर ये सातों आशीष को Photo, चाहता हूँ। photo, photo. हाँ, अपने मुंह को खोले और कहे प्रभु जी, Tell God, tell God, प्रभु tell जी, God. I've come here, Lord, with an मैं यहाँ पर expectation आया of हूँ प्रभु, blessing. I've come here with an expectation मैं of blessing. अपेक्षा के साथ आया हूँ प्रभु जी, I've come here with an expectation of मैं blessing. अपेक्षाओं के साथ आया हूँ प्रभु जी। I know I am not going empty-handed. मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ प्रभु जी, I'm going with a full stomach, Lord. मैं पूरे भरपेट जा रहा हूँ प्रभु जी यहाँ। Yes, overflowing with your blessing. वो आपके आशीषों से भरपूर होके जा रहा हूँ। Today I'm going with a determination in my heart. आज मैं कुछ प्रण करके जा रहा हूँ पिता परमेश्वर, I'm receiving a blessing in my आपके आशीषों का फिर जीवन में पाते हैं। Tell God, tell God, tell God, tell God. Photo, photo, फोटो को photo. खोल के बोले, Yes, I want all this blessing in my life. चाहता हूँ मैं आपके सब आशीषों को This प्राप्त करना चाहता evening I want a special anointing. हूँ। और आज की शाम में एक विशेष अभिषेक को चाहता हूँ प्रभु। I want a special anointing this evening, विशेष Lord. अभिषेक की आज की शाम चाहता हूँ। Yes, Lord. I've come here to give my time to you और मैं अपने जीवन को आपको देने के लिए आया हूँ प्रभु, because I know the purpose of you is to bless me. और आपको उद्देश्य से प्रभु मुझे आशीष देना। Thank you, Lord. सब लोग बोलो, सब लोग। सब लोग बोले, अपने जुबान को खोले, कोई खामोश न रहे और कहे प्रभु आज मैं आशीष को पा चुका हूँ, मैं भरपूर होकर जाने वाला हूँ, मैं परिपूर्णता के साथ जाने वाला हूँ, मैंने भरपेट पा लिया प्रभु जी, और मैं तेरे आशीषों को ग्रहण कर चुका हूँ। आज मैं भर के जाऊंगा प्रभु जी, वो सातों आशीष मेरी जिंदगी में बहुतायत से आशीष लाएंगे प्रभु जी। अब मैं वैसे ही नहीं रहूंगा प्रभु जी, मेरे जीवन में परिवर्तन होगा, मेरे घर में परिवर्तन होगा, मेरे परिवार में परिवर्तन होगा, मेरे बच्चों में परिवर्तन होगा, मेरे अंदर परिवर्तन होगा। आप प्रभु जी प्रण करिए आज। हालेलुया। If you want to receive that blessing, यदि आप आशीष come forward, come forward. God is going to bless you. यदि God is आप going to आशीष चाहते हैं Yes, तो come, सामने come आए। forward, come हालेलुया। forward. Yes. वो God सामने is going to bless you this evening with a supernatural blessing in your life. अलौकिक आशीष With a आपके supernatural लिए। blessing in your life. अलौकिक आशीष God is going to bless you with a supernatural blessing. और अलौकिक रीति से प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। Purpose is to bless you. His purpose is to bless उसका you. उद्देश्य है आपको आशीष देना। Purpose is to bless आप उसका उद्देश्य है आपको आशीष you. He देना। wants to bless you this वो evening. आपको आशीष देना चाहते हैं। Touch him, 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 touch him. Jesus, 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 touch him, 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 touch him. Jesus, Jesus, yes, Lord. Jesus, 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 Jesus. Touch him, 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 Lord, touch him, Lord, touch him, Lord. Touch him, touch him. Let them receive it, Lord. Let them receive वो आपको प्राप्त करना है। वो ग्रहण प्राप्त Everyone, Lord. Everyone. This evening, everyone receive that. Everyone receive that. Everyone receive that. Amen. We want to touch this evening. Receiving your 7 blessings in our life. Everyone receiving the blessing. Thank you. Transforming our life. वो जीवन को परिवर्तन Changing our life. जीवन को बदलते हुए Bringing new meaning and new power in us. नए सामर्थ्य नया मतलब लाते हुए Yes, Lord. We have come here, Lord, हम यहाँ पर आए प्रभु with one purpose एक पर उद्देश्य के साथ to receive your blessing this आपके evening. आशीषों को पाने के लिए We will go filled with your blessing वो आपके आशीषों से भरपूर होकर जाएंगे प्रभु। every day. हर एक दिन Every day. दिन With a new expectation of blessing. आशीषों की नई उम्मीदों के साथ Because you are a creative God. क्योंकि आप सृजनात्मक परमेश्वर हैं। Every day you want to give us new things in our आप lives. हमको प्रतिदिन नया नया देना चाहते हैं प्रभु। We
thank you and we praise आपका you. धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। Thank you for speaking to us this evening. आज की शाम हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Bless your children. अपने बच्चों को आशीष Open दीजिए। their eyes. उनकी आंखों को खोल दीजिए Let them be sensitive to the needs of others. और दूसरों की जरूरतों के प्रति वो जागरूक रहे प्रभु। And more than that, उससे भी बढ़कर प्रभु conscious of your presence 24 hours 7. 24 घंटे सातों दिन आपकी उपस्थिति के लिए बेताब और पागलपन हो प्रभु। Never to leave your presence. वो आपकी उपस्थिति को कभी न छोड़ने वाले There प्रभु। is no security apart from your presence. आपसे हट करके कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं है प्रभु। You are our hiding place. आप हमारे छिपने का स्थान है। Touch us this evening. आज के शाम में छूइए प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you. The Lord will lift up his countenance and be gracious unto you and give you his peace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. We give all the